Today we will discuss a very easy topic of grammar, that is noun, and it is a very easy topic, and I promise you I will teach you in the simplest way and you will understand in one video completely. A very short video, and if you find it slow, you can make a speed of 2x or 1.5x. Okay. So firstly we will discuss the definition of noun. Noun is a word used as a name of person, place or thing. Noun is a word. Focus on this. Noun is a word used as a name of person. Person who? I, Vaishnavi, is a person. Who you are watching is also a person. Ram, Shyam, Sita, Geeta, everyone is a person. Place. You know, Taj Mahal is a place. Lucknow, from where I am making this video, is a place. Delhi, Kolkata, Mumbai, Bangalore, Royal Challengers Bangalore. Bangalore won the match. Bangalore is a place. Thing. Mobile is a thing from which you are watching the video. Anything is a thing, you can say. Okay. You tell me the name, I'll tell that it is a thing or not. Okay. And we'll get to examples like pen is a thing. Okay. Mobile, copy, notebooks, books, everything is a thing. Everything comes in the column of things. Like we say Ram cooks food. Ram here is a person. Person is a noun. Ram is a noun. Okay. Cooks food. Food is a thing. So food is also a noun. Like we have this is a pen. Pen is a thing. So this is a pen word is a noun. The India Gate is in Delhi. India Gate is a place. Place in where? Delhi. India Gate and Delhi both are noun and both come in the category of place. Like we say, for example, Ram is a person. Okay. Food is a thing. Okay. Both are noun. This is a pen. Pen is a thing. Noun is a name of a word used as the name of person, place or thing. So pen is also a noun. Very clear to everyone? The India Gate is in Delhi. India Gate is also a place. Place of a particular name. So this place you can see here. India Gate is also the noun. And Delhi is also a place in. So this comes in the category of noun. Noun is clear to everyone? Okay. Firstly, we'll discuss how to identify the noun. Then we will come to what are the kinds of noun. We can say we can ask questions like what, whom, who. Then when we get the answer, then we'll say this is a noun. Like what? Who cooks food? Who cooks food? We get the answer. Ram cooks food. So Ram is a noun. Like see. A sentence. एक कोई सेंटेंस उठा लो तो सेंटेंस याद रखना हमेशा ही मेरा मार्कर नहीं मिल रहा चलो सेंटेंस हमेशा तीन चीजों से बन के बनता है. उसमें एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब आएगा और दूसरा एक आपका वर्ब आएगा, दूसरा एक आपको ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक है. सेंटेंस तीन चीज से बन के बनता है जिसमें आपका सब्जेक्ट रहता है, पहली चीज, वर्ब रहता है दूसरी चीज, तीसरा एक ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक. अगर ये तीन हमारे पास है किसी चीज में तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. ठीक. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो देखो सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं. तो सब्जेक्ट ये आ गया तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा आखिरी में हम क्या बोलते हैं, हमारा वर्ब हो गया. इज वर्ब. हेल्थ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. और याद रखना है कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, बस और कुछ नहीं हो सकते हैं. सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ये दोनों हमेशा नाउन रहेंगे और प्रोनाउन रहेंगे. तो वॉकिंग क्या हो गया, हमारा नाउन हुआ कि प्रोनाउन हुआ? तो कैसे जानेंगे? हम यहाँ से आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कर लेते हैं तो हम ये बात जान जाएंगे कि हमारा नाउन है कि प्रोनाउन है. तो हम पूछ लेते हैं व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो तुम रिप्लाई करोगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो व्हाट का आंसर आ गया तो ये हमारा क्या बेटा बन जाएगा? नाउन बन जाएगा. ठीक है. और हेल्थ में कैसे जानेंगे? फिर आप पूछ सकते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट, तो आंसर आ जाएगा यस हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो ये भी हमारा नाउन बन जाएगा. तो हम जानते हैं कि हम व्हाट, हूम, हु करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेंटेंस. अगर हमको उसका आंसर मिल जाएगा तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा नाउन है. बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही तुमको समझना है, बस खत्म. तो मतलब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. स्टार्टिंग हमारी सेंटेंस में सब्जेक्ट से होती है, एंडिंग हमारी वर्ब से होती है. और क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होगा और कुछ नहीं होगा.
और जैसे तुम नाउन क्या होता है, वर्ड होता है जिसमें जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिफाइन करता है। तो राम एक पर्सन हो गया तो हमारा नाउन हो गया, फूड हमारा थिंग हो गया तो भी हमारा नाउन हो गया, पेन हमारा थिंग हो गया तो ये हमारा नाउन हो गया, इंडिया गेट एक प्लेस है तो ये हमारा नाउन हो गया, दिल्ली एक प्लेस है तो हमारा नाउन हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन पे आते हैं। चलो ओके, लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ओके, one by one we'll discuss each and every one. But firstly we'll start with proper noun. Okay, proper noun is a name given to any particular place, animal or thing. Okay, but the word particular tell everything. ठीक है, हिंदी में समझो पहले कि प्रॉपर नाउन जो है किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है, तभी हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ओनली पर्सन ना, एक इकलौते पर्सन है, और इंडिया एक इकलौती जगह तो है पूरे वर्ल्ड में, तो और वहां के प्रधानमंत्री भी एक इकलौते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन है इंडिया के कि नहीं, तो ये हमारे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना पहली बात ये कि जब हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। जस्ट सी, नरेंद्र मोदी का एन कैपिटल लेटर से है, इंडिया का आई कैपिटल लेटर से है, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो ताजमहल की जो टी है कैपिटल लेटर से है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक हमारे पास भी है, कौन सा, ताजमहल। तो ताजमहल हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक इमारत का नाम है, याद रखना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। प्रॉपर नाउन आप किसी ग्रुप या समूह को हम नहीं बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को ही तो हम लोग बोलेंगे। इससे एक बात और पता चलती है हमको कि प्रॉपर नाउन कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे, प्लूरल नहीं होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, कभी ये प्लूरल नहीं बन सकते। जब एक इकलौता ही चीज पूरे दुनिया में है तभी उसको प्रॉपर नाउन की दर्जा दिया गया है, तभी उसको प्रॉपर नाउन का दर्जा दिया गया, स्टेज दिया गया है। तो कभी बेटा हमारा प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और कुछ और चीजें, कुछ चीजों में आर्टिकल जैसे ए एन तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना हमको प्रॉपर नाउन में, द यूज होता है लेकिन एक्सेप्शन से वही द यूज होगा, नहीं तो यूजुअली हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। द कहाँ यूज होगा, रिवर्स के साथ यूज होगा, कुछ द गंगा, द यमुना, कुछ मॉन्यूमेंट के साथ यूज होगा, द ताजमहल, कुछ न्यूज़पेपर के साथ यूज होगा, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे बस कुछ एक्सेप्शंस है जहां हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, एंड वी डोंट यूज आर्टिकल द। ओके, नाउ वी कम टू कॉमन नाउन। अभी हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, अब हम कॉमन नाउन पे आते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, जिस संज्ञा से, पहले जानते हो ना नाउन मतलब संज्ञा हिंदी में, तो वही चीज, जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। मीन्स from which we get to know about a class or a group of something, we say this is a common noun। जैसे horse is very faithful। अगर तुम जंगल सफारीज में गए होगे, तुमने वॉच किया होगा, वहां पे डिफरेंट एनिमल्स का या डिफरेंट बर्ड्स का नाम होता है। जैसे लॉयंस का नाम होता है, जैसे हॉर्स का नाम होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे पूरे ग्रुप या समूह कह सकते हो, पूरे उनकी बात की गई है, इसलिए हॉर्स क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी एक नाम लिख देते कि फलाना हॉर्स समथिंग समथिंग, तो हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पूरे ग्रुप ऑफ हॉर्स की बात की गई है कि पूरा जो ग्रुप ऑफ हॉर्स है बहुत फेथफुल होता है, फेथफुल एनिमल होता है, पूरे ग्रुप की बात की गई है, पूरे क्लास की बात की गई है, तो हम ये बोलेंगे इसको कॉमन नाउन। लाइक लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। अब यहाँ तुम जंगल सफारी में देखो कि वहाँ अलग लॉयन का नाम होता है, ये अगर तुम किसी के वीडियोस में देखना तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा। तो लॉयन जो है, यहाँ पूरी लॉयन कम्युनिटी की बात की गई है, पूरे लॉयन की ग्रुप या क्लास की बात की गई है, इसलिए लॉयन यहाँ पे एक कॉमन नाउन बन जाएगा। किंग, बहुत सारे किंग होते हैं वहां पे, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। जंगल, दुनिया में बहुत जंगल है, तो इन सेम वे ये पूरे ग्रुप या क्लास या कम्युनिटी की बात की गई है, इसलिए किस में आते हैं, ये लोग कॉमन नाउन में आते हैं। अगर यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लॉयन का नाम हम लिख देते तो वो हमारा क्या आ जाती बेटा, प्रॉपर नाउन में, लेकिन यहाँ पूरे समूह की एक साथ बात कर ले रहे हैं, इसलिए हमारे कॉमन नाउन में किसी एक स्पेसिफिक जंगल का नाम लिख देते हैं हम, तो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन यहाँ पूरे जंगल की बात की गई है, तो अब ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन क्या समझते हो, बॉयज,
पूरा समूह हो गया लड़कों का, तो हमारा क्या बन जाएगा वो कॉमन नाउन। बॉयज क्या हो गया हमारा एक पूरा ग्रुप, लड़कों का समूह बन गया। अगर इसमें हम किसी का नाम लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर नेम राम, राम का नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने पूरा बॉय पूरे सब क्लास के लड़कों को एक साथ पूरे बॉयज में कलेक्ट कर लिया, तो अब ये क्या बन गए कॉमन नाउन। कोई भी लड़का उसमें हो सकता है, हम कहेंगे बॉयज, यू बॉयज स्टैंड अप, तो यहाँ पे पूरे लड़कों के समूह को तो बोल रहे हैं, किसी का एक का नाम लेके तुमने यहाँ बोला नहीं कि तुम खड़े हो राम, तुम खड़े हो, तो ये पूरा क्या बन जाएगा कॉमन नाउन। गर्ल्स हैं और लोग पूरे क्लास में यहाँ बैठी, तो हम बोलते हैं कि यू ऑल गर्ल्स स्टैंड अप, तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरी जो गर्ल्स हैं वो पूरी कॉमन नाउन होते हैं। अगर हम किसी लड़की का नाम बोल के शिवांगी तुम खड़े हो, तो शिवांगी तो प्रॉपर नाउन बनती, लेकिन हम पूरी 4-5 लड़के एक साथ जो क्लास में बैठे हम सबको खड़ा कर दे रहे एक साथ, तो पूरी समूह पूरी ग्रुप क्लास खड़ी हो गई लड़कियों की, तो वो हमारी क्या बन गई कॉमन नाउन। समझ में कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कितना मिनिमम डिफरेंस है, पर समझ जाओगे। किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन, पूरे ग्रुप का नाम एक साथ लेंगे तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा से ग्रुप समूह मतलब ग्रुप का पूरे कम्युनिटी का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल से हम समझ जाएंगे क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ जो वर्ड बंच है ये हमारा क्या है बेटा कलेक्टिव नाउन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। बंच क्या बता रहा है, पूरे ग्रेप्स के ग्रुप को बता रहा है, तो उसने पूरा एक गुच्छा आता है ग्रेप्स का, तो उसने पूरा खा लिया है, तो बता रहा है कि पूरे बंच को ही एट। आर्मी प्रोटेक्ट अस, तो आर्मी किसको बता रही है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बता रही है कि जो आर्मी है, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमको किसने बचाया है, हमारी इंडियन आर्मी ने तो बचाया है। एक बार जय हिंद लिख दो इंडियन आर्मी के लिए। तो इन सेम वे आर्मी प्रोटेक्ट अस, तो आर्मी किसको बता रही है बेटा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बता रही है। तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन, एक कह सकते हो समूह होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है। जैसे टीम इंडिया है अभी, तो उसमें 11 लोग होते हैं, पूरे एक साथ मिलके खेलती है तो पूरे टीम बन जाती है, तो ये जो टीम वर्ड हो जाएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, टीम वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। जो कम्युनिटी होती है, मान लो एक सिंधीज की कम्युनिटी है, किसी रिलीजन की कम्युनिटी होती है, तो वो पूरी एक साथ मिलके क्या बनती है कलेक्टिव नाउन बन जाती है, कलेक्शन हो जाता है, उनका ग्रुप समूह बन जाता है, एक साथ हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। Okay students, now we move forward and we'll discuss about material noun and abstract noun. Material noun जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे अन्य वस्तु बनाई जाती है, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। See, I am making this video bilingual because I want that my audience should understand very well. And मैं जानती हूँ मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, कैसे समझती है, क्या पसंद करती है, किस उम्र की, किस स्टेज की है। एंड द सेम वे मैं देखो डेफिनेशंस को इंग्लिश में बताती हूँ और हिंदी में बताती हूँ, और मैं अपनी भाषा को भी बाइलिंगुअल इसलिए रखना चाहती हूँ। आई कैन मेक इन वीडियो इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, बट आई वांट अ वीडियो टू बी इन बाइलिंगुअल सो इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। तो मटेरियल नाउन बहुत सिंपल भाषा में समझ लो, किसी मटेरियल को, किसी सब्सटेंस को, रॉ मटेरियल, इन सब चीजों को बोलते हैं, ठीक है। जैसे वी हैव गोल्ड, वी हैव सिल्वर, वी हैव मिल्क, दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। एनी सब्सटेंस सिंपल भाषा में समझो तो सब्सटेंस, ओके, ये एक वर्ड पकड़ के रहो, इसी से समझ जाओगे सब कुछ कि सब्सटेंस, मटेरियल, इन सबको हम क्या बोलेंगे मटेरियल नाउन बोलेंगे। लाइक द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, तो आयरन क्या होगा, सब्सटेंस है, रॉ मटेरियल है, तो इसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। ही हैज अ चेन ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या है बेटा, एक रॉ मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, तो हम क्या बोलते हैं, ये सिल्वर क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। मटेरियल नाउन से बात समझ में आई। लाइक वी हैव मिल्क, गोल्ड, ओके, वी हैव ऑयल, वी हैव वाटर, वी हैव वुल, वी हैव कॉटन। ये देखो जैसे क्या क्या एग्जांपल लिख लें, ऑयल लिख लें, हम लिख लेते हैं क्या बोलते हैं कॉटन लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं वुल लिख लेते हैं, हम मिल्क लिख लेते हैं, ये सारा हम क्या किस में ले आएंगे, हम लोग मटेरियल नाउन में लेकर आएंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन मतलब एक रॉ मटेरियल, कोई सब्सटेंस, इन्हीं को जो इनके नाम होंगे इनको मटेरियल नाउन के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। पेपर रख लो, क्लोथ रख लो, हनी रख लो, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, ये सब हमारे किस में आते हैं बेटा मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। कोई रॉ मटेरियल, कोई सब्सटेंस, ये हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये जानते हैं। एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम of something that we can only think or feel but cannot touch, ठीक है।
कोई भी चीज जो तुम फील कर सकते हो, तुम इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन तुम इसे छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते हो, तो क्या हो जाता है बेटा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। इट इज इमोशंस, ओके। लाइक ब्यूटी कम्स इन द स्मॉल पैकेट। ब्यूटी क्या है? क्या किसी की ब्यूटी से पकड़ लेते हो जा करके? नहीं पकड़ सकते हो। ब्यूटी तुम फील कर सकते हो, तुम देख सकते हो। तो ब्यूटी हमारी क्या होती है बेटा? ये हमारी बनती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मदरहुड इज ब्लेसिंग। मदरहुड, एक जब लड़की माँ बनती है तो वो एक इमोशन होता है। देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस शी इज गोइंग थ्रू, दैट इज समथिंग, दैट इज फीलिंग, दैट इज इमोशन। तो उसको महसूस कर सकती हैं लड़कियां, लेकिन उसको पकड़ तो नहीं सकती हैं। तो मदरहुड हमारा क्या हो जाता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Abstract noun is emotions, your feelings, your love, happiness, sad. You love someone, you feel from inside, but you don't touch it. You don't grasp it like this. So emotions are your abstract noun. Hope you understood this very well. We discussed about what is noun, what is proper noun, common noun, abstract noun, material noun, and everything. Collective noun. इतनी बात समझ में आई? नाउन का होता है किसी पर्टिकुलर चीज का नेम, पर्सन का नेम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, किसी तो वो नाउन होता है। नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा। एक पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हमारा कॉमन नाउन होगा। इमोशंस की बात होगी तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। किसी रॉ मटेरियल की बात होगी तो हमारा मटेरियल नाउन होगा। जब हम सोल्जर्स, आर्मी, इन लोग की बात करेंगे, टीम, कम्युनिटी और क्या बोलते हैं डिफरेंट चीज की, तो हमारा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इतना सिंपल नाउन कॉन्सेप्ट था, कोई लोड देने की जरूरत है। अब एक्सरसाइज करके चैप्टर फिनिश करेंगे।